आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण। गीतार उपदेश देवाकु जाई भगवान कृष्ण अर्जुन को कहले जे कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जेतेबेले साधुंकर परित्राण होईगला दुष्कृतंकर विनाश होईगला सेतेबेले धर्म संस्थापनार समय आसिला। आउ धर्म संस्थापना जेतेबेले समय आसिला धर्म संस्थापना निमंते से गीता ज्ञान देले जेउथिरे धर्मर मूल धर्मर मर्यादा धर्मर संपूर्ण व्याख्या से गीतारे करिछंती। गीता जहाँकि महाभारतर महायुद्धरे कुहागला आउ एइथिपाई कुहागला जे महायुद्धरे मोड़रे पहुँची अर्जुन का हाथ पाद थरिबाकु लागिला। तांकु निजर संपर्कीय निजर बंधु बांधवंक मोह तांकु मोहि नेला। से मायाबद्ध होइगले। सेतेबेले श्रीकृष्ण तांकु निज से मायार मोहरु बाहर करने निमंते गीता ज्ञान देले। एबे एते बड़ महायुद्ध काहींकि हैला तार कारण देखिबा उचित। ए विनाशर ए महाविनाशर बीज केउठी बपन होइथिला कारण से बीजर अंतरे निहित थिला शेषरे गीतार उपदेश। ए बीज सेतेबेले बपन होइथिला जेतेबेले दुर्योधन आदि पांडवंक उन्नति एवं प्रगति देखि पारु नथिले। सेमाने इंद्रप्रस्थ को स्वर्ग कर देइथिले। जेतेबेले जतुगृहरे सेमाने तांकु नियारे जळै देबाकु चाहिले सेमाने भीम को पानी रे बुड़ै देबाकु चाहिले किछि हेलानी। मामू शकुनी देखिले जेतेबेले जणे वीर को निज बलरे निज शक्ति रे परास्त न करि पारिबो धोकारे मारि दियो। सेतेबेले मामू शकुनी कहिले जे देख बसंत महोत्सव आसुची
ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ହସ୍ତିନାପୁର ଆସିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଶା ନିମନ୍ତେ ପଶା ଖେଳିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ପଶାରେ ମୁଁ ନିଜର କଳା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ, ନିଜର ଧୋକାରେ ତୁମକୁ ସେ ଜିନିଷ ଦେବି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେବି ଯାହାକି ତୁମେ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ପାଇପାରିବନି। ଆଉ ସେଇ ପଶାରେ ମାନବ ସଂସ୍କୃତି, ହ୍ୟୁମାନ୍ କଲଚର, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଏଲ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନର ବିଧ୍ୱଂସର ବୀଜ ବପନ କରାଗଲା। ଆଉ ସେଇ ପଶାରେ ଜଣେ ଲୋକ ପଶାର ଜିଦିରେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ହରାଇ ଦିଏ, ଆଉ ଜଣେ ନାରୀକୁ, ଜଣେ ସତୀକୁ ସମଗ୍ର ଦରବାରରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏ ଦେଶରେ, ଏ ସଂସ୍କୃତିରେ ହୋଇନପାରେ। ସେଠାରେ ହିଁ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଲା ମହାବିନାଶର, ଯାହାକି ନା କେବଳ ଗୋଟାଏ ମହାନ ରାଜ୍ୟକୁ ବରଂ ଗୋଟାଏ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆଉ ସେ ସଂସ୍କୃତିରେ ପାଳିତ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ, ମାନବୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ, ମାନବୀୟ ସମ୍ମାନବୋଧ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ପଶାପାଲିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲା। ସେଦିନ କୌରବ ସଭାରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୟୁତ, ଯେଉଁ ପଶା ଖେଳ ହେଲା, ତାହା ଧର୍ମର ଖେଳ ନଥିଲା, ଛଳନା ଆଉ କପଟର ଖେଳ ଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ତାକୁ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବି ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌରବ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଦ୍ରୋଣାଦି କୁରୁବଂଶର ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରଜ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଛଳନାକାରୀ ଶକୁନି ଜିତୁଥିଲା, ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ଗୋଟାଏ କରି ଗୋଟାଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ସହିତ ନିଜର ସବୁ କିଛି ହାରି ଚାଲିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଦ୍ୱିତ କେତେ ବିନାଶକାରୀ ହେଇଥାଏ ସେ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଳି ମହାଜ୍ଞାନୀ ବି ଦ୍ୱିତ ଭଳି ମହାବିନାଶକାରୀ ଖେଳ ଖେଳିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଶକୁନି ଭଳି କପଟି ଏବଂ ଛଳନାକାରୀଙ୍କ ସହିତ। ଇଏ ତ ସେହିଭଳି ହେଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଈ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ସିଂହର ଖାଦ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦେବୀ, କୌଣସି ବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରେନି। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଏହା ହିଁ ଧର୍ମ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯିବ, ସେ ମନା କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ପଶା ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇଟି ଯାକର ପରିଣାମ ବିନାଶକାରୀ। ତଥାପି ବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦ୍ୟୁତ ଖେଳିବାରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କେବେ ଅଟକାଇ ପାରିନଥାଏ। ଭ୍ରମର ସାଗର ମାୟାର ଢେଉରେ ନିଏ ଭସାଇ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ତା ମାୟାରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି। आठे मामाश्री आठे आठ अवश्य पड़िब भणजा, अवश्य पड़िब। आठ 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 आठ। वाह मामाश्री वाह, कौन दाना पकेले? ये तो किछि नुह भणजा, आगु को देखि चला मो दानर करामती। सम्राट युधिष्ठिर एबे आपणकर निजर राजकोष समस्त धन संपत्ति तो मो भणजा निकट रे हारि सारी छंती। एबे आपण कोन बाजी रखिबे? मु मोर दास दासी को बाजी रखुची। दास दासी मामाश्री? हाँ भणजा। नो दरकार, नो 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 पड़वा दरकार मामाश्री, नो नो पड़िब, नो पकातु, नो अवश्य पड़िब भणजा, अवश्य न पड़िब तो पाई। हाँ नो।
ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପଶା ଖେଳ ସଦ୍ଭାବର ସହିତ ଖେଳା ଯାଉନି ଆଉ ବିନାଶର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦ୍ୱୈତକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ହିଁ କୁରୁକୁଳର ମଙ୍ଗଳ, ନଚେତ୍ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ନିଜ ସୀମାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଣ୍ଡବ ହାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦ୍ୱୈତକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌରବ ହାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନର୍ଥ ଦିଶିନଥାନ୍ତା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ୟା ପରେ ଆପଣ କଣ ପଣ ରଖିବେ? ନା ଏବେଠୁ ସଭା ଛାଡି ପଳେଇ ଯିବେ। ରେ ସୁତପୁତ୍ର, ଆମ ଧମନୀରେ ବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୂତକୁ କେବେ ବି ଅଧା କରି ଛାଡ଼ି ଯାଉନା। ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମନରେ ଆସୁଛି ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛୁ। ପଣ ରଖନ୍ତୁ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ସବୁ କିଛି ପଣ ରଖନ୍ତୁ। ରଖନ୍ତୁ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ। ମୁଁ ମୋର ହାତୀ ଦଳକୁ ପଣରେ ରଖୁଛି। ହାତୀ ଦଳ? ମାମାଶ୍ରୀ ମୋର ହାତୀ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ। ହାତୀ ଦଳ ଅବଶ୍ୟ ଭଣଜା, ଠିକ ଅଛି। ମାମାଶ୍ରୀ ଆପଣ ନ ପକାନ୍ତୁ। ନ ହାତୀ ଦଳ ମାମାଶ୍ରୀ ନ। ପଡ଼ିଗଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର। କଣ ଜିତିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ମାନେ? କଣ ଜିତିଲେ? ମହାରାଜ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଜୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଜିତିବାରେ ମୋତେ କୁରୁକୁଳର ହାରିବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏ ଦ୍ୱୈତ ରୋକି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱୈତ ଏବେ ଦ୍ୱୈତ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଣ ସହିତ କୁରୁକୁଳ ବିନାଶର ପଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ ଭୟଙ୍କର ବିନାଶର ଯାତ୍ରାର ସାକ୍ଷୀ କୁରୁକୁଳର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଅଟନ୍ତି। ବିଦୁର, ଏଥିରେ ବିନାଶ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଦ୍ୱୈତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜଣେ ଜିତିଲେ ଆଉ ଜଣେ ହାରିଥାଏ। କୁହନ୍ତୁ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଏବେ କଣ ପଣ ରଖିବେ? ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସେନା ପଣରେ ରଖୁଛି। ସେନା? 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 ମୁଁ ସେନା ଚାହେଁ ମାମାଶ୍ରୀ, ସେନା। ସେନା 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 11। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେନା ମୋ ଭଣଜାର ହେଇଗଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଏବେ ତ ଏ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ। ତା ତ ଏ ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଛି। ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବି ତ ସମ୍ଭବ ଯେ ବାଜି ଓଲଟି ଯାଇପାରେ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯାହା ହାରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଗୋଟାଏ ପଣରେ ଫେରି ପାଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରସ୍ତ୍ର ଯୋଦ୍ଧା କଣ ବା ଲଢ଼ିବେ? ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ସେନା ସବୁ କିଛି ତ ହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ
ଆଉ ଖେଳିବ ନା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦବ? ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ବାଜିରେ ଲଗାଉଛି। ଯଦି ଏ ବାଜି ତୁମେ ହାରିଯାଅ ତେବେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ହାରି ଯାଇଛି ସେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଫେରି ପାଇଯିବି। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମାମାଶ୍ରୀ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପକାନ୍ତୁ 10। ମାମାଶ୍ରୀ 10 10 ମାମାଶ୍ରୀ 10। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସବୁ କିଛି ହାରିଯିବା ପରେ ବି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ୱିତ ସଭାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏହାପରେ ଆପଣ ଦାନରେ କଣ ରଖିବେ କୁହନ୍ତୁ? ମାମାଶ୍ରୀ ଆପଣ ତ ସବୁ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପଣ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ନିକଟରେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ଏବେ ନିର୍ଧନ ହେଇସାରିଛି। ନା ସମ୍ରାଟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ ନିର୍ଧନ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ବହୁତ। ଆପଣ 4 ଜଣ ଅନୁଜଙ୍କ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭ୍ରାତା ହିଁ ତ ଧନ। ସମ୍ରାଟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବାଜି ଜିତି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାହା ବି ଜିତିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ନିକଟରେ ନା ଧନ ଥିବ, ନା ସମ୍ପତ୍ତି, ନା ଶସ୍ତ୍ର ଥିବ, ନା ରାଜତ୍ୱ, ତେବେ ସେ ରାଜା ଏବଂ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ରହିନଥାଏ। ହଁ ନା କଣ ଭଣଜା? ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇକୁ ବାଜି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜିତି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରିଥିବା ରାଜ ସମ୍ମାନ, ମାନ ସମ୍ମାନ। ମହାରାଜ, କଣ ଏବେ ବି ଆପଣ ଏ କ୍ରୀଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି? ମହାରାଜ, ଏ ଦୂତ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କେମିତିକା ଦୂତ ଯେଉଁଥିରେ ହାତୀ ଦଳ, ସେନା, ଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରାଜତ୍ୱକୁ ବି ପଣ ରଖାଯାଉଛି? ଇଏ ଦୂତ ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ଯୁଦ୍ଧର ଦର୍ପଣ। ମହାରାଜ, ଯୁଦ୍ଧର ଦର୍ପଣ। ପ୍ରଭୁ, ବିଦୁର ଦ୍ୱିତକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଦର୍ପଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଦୁର ସତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଦର୍ପଣକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀ, ଦର୍ପଣ ତ ସେହି ଦେବତା ଯାହାଙ୍କର ଆଖି ବି ଥାଏ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନା କେବଳ ନେତ୍ରହୀନ, ବରଂ ସେ ତ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଦୁରଙ୍କର ଏ ଚେଷ୍ଟା ବୃଥା ହେଇଯିବ। ହଁ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଜି ରଖିବେ ନା ରାଜଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ? କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ତ ପୁତ୍ର ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଅନୁଜ ନକୁଳକୁ ପଣରେ ରଖୁଛି। ନକୁଳ? ନକୁଳକୁ ବି ପଣ ରଖିଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦ୍ୱିତ ତ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମାମାଶ୍ରୀ, ଆମେ ଜିତିଗଲେ। ଆମେ ଜିତିଗଲେ। ନକୁଳ,
सम्राट युधिष्ठिर या पर आपण पण कौन रखिबे कहंतु। एबे मु सहदेव को पणर रखुचे। सहदेव मामाश्री 11 मामाश्री मामाश्री 11 मामाश्री  दरबार बसिथिबा वीर महावीर पितामह आचार्य ए समस्ते छल कपटे घारी होथिबा दूत को रोकी परिबेनी। देवी कौरवंक सभारे उपस्थित वीर महावीर आचार्य पितामह ए समस्ते राज्य एवं शासनर दास पलटि जाइछन्ति। दुर्योधन भली अधर्मी एमानकर अन्नदाता पलटि जाइछि। सेथिपई ए समस्तंक बुद्धि भ्रष्ट हो जाइछि। आउ अन्नदातांक विरोध केभली करिबे माने। सभारे उपविष्ट समस्त कौरवंक रक्तरे नीरवता घटी जाइछि। नाचार हो जाइछन्ति देवी, नाचार हो जाइछन्ति। प्रभु पांडवों को सभा मध्य को जीव अनुचित थिला। तमे भी सही कथा कहूछ जहा धर्मशास्त्र रे कुहा जाइछि। शास्त्रानुसार दुराचारी एवं अनाचारी गृह खाद्य ग्रहण अनुचित। अन्य शब्द रे तार अतिथि हेबा अनुचित। बस ए भूल पांडव माने करि सारिचंती। एहार अर्थ प्रभु ए द्यूत कण एबे बंद करी हबनी। देवी
पर्वत मथानरू लंफ प्रदान करिथिबा नदी को क्षिप्र गति निम्नगामी हेबाकू केही कौन बाधा दे पारिब? धनुरू बाहरी जाइथिबा तीर को केही फेरई आनी पारिब? देवी ठीक सेमिति महाविनाश आड़क अग्रसर हेउथिबा ए द्यूत को भी केही प्रतिरोध करि परिबेनी। आउ ए द्यूत क्रीड़ा तो विधिर विधान देवी। ए द्यूत सूचना देउछि देवी जे राजा को अंध हेबा अनुचित। धृतराष्ट्र जन्मांध तो निश्चित, किंतु से पुत्र मोह कारण रूपी अंध हो जाइछन्ति। तांकर अंतर्चक्षु निस्तेज हो पड़िछि, कारण तांको आखि उपरे संपत्ति, शासन एवं लालसार परदा पड़ जाइछि। एई से लालसा जहाँ निमित्त से द्यूत माध्यम आसुथिबा विनाश को देखि पारु नाहंती, आउ सेइथिपाई द्यूत को बंद करू नाहंती। एबे कहा को पण रखिबे सम्राट युधिष्ठिर? मु एबे निजको निजे पण रखुची। नियंतु सम्राट युधिष्ठिर, आपण जमिति दुर्योधन दासन होई जानती। हुए तो मु निज भाई मान को मुक्त करी, नचेत मु भी तुमर दास होई जिबी। ताले मामश्री टिके चिंता करी दाना पकातु, अब बार पकातु। अवश्य भणजा, अवश्य अवश्य भणजा, अवश्य एबे निज मुकुट मो पाद तले रखी दियंतु। दुनिया लोक देखे पसार परिणाम, दुनिया लोक देखे पसार परिणाम, घड़ी करे करे धनी को सबुठ बड़ कंगाल, राजा को करे दास ए पसा, राजा को करे दास। प्रभु कि विचित्र कथा, शकुनी भली अधर्मी धर्मराज को जीतीगला। देवी यह ही तो आग को आसवाक थिबा कलिजुगर प्रभाव, यह ही तो आगामी कलिजुगर सूचना। देवी कलिजुगर मानव माया मोह एवं लोभर चक्रव्यूहरे पड़िजिब। जेमिति एबे कौरव माया मोह एवं लोभर बशवर्ती हो जाइछन्ति। प्रभु कलिजुगरे कौन धर्मर पथ प्रदर्शन निमंते कौनसी भी संकेत रहिबनी? देवी एई द्यूत कारणरू हेबाकु थिबा कुरुक्षेत्रर युद्धरे ही पांडवंक योगदान धर्मपथरे अग्रगामी मानक निमित्त पथ प्रदर्शक हब। देवी एबे केवल यह ही देखिबाकु अछि जे दुर्योधन एवं शकुनी अधर्मर केउ परिसीमा पर्यंत जाई पारुछन्ति। क्षमा करिवे सम्राट युधिष्ठिर श्री, आपण तो निजर सब किछि हारी जाइछन्ति, राज्य भी मुकुट भी। एबे तो आपण आउ सम्राट नाहंती। आपण एबे अन्य भाई मानक भली दुर्योधनर दास हे गले दास। हाँ मामाश्री, मु निर्धन हो सारी
एबे मो पाखरे किछि नाही, किछि भी नाही। एबे मो किछि भी पणर रखि परिबिनी। ना ना सम्राट, एमिति भी आपण कांगाल होई नाहंती। एबे भी आपणको निकटर गोटे हीरा बाकी रहिछि, सबुठु अमूल्य हीरा। नहीं, मो निकटरे कौनसी भी हीरा नहीं। अच्छी सम्राट अच्छी, पांचाली द्रौपदी मामाश्री। हाँ द्रौपदी। कौन भावुचंदी भ्राताश्री? पत्नी राणी हे रहिबो आ पांच पति दास हो जिवे, ये उचित नुहे। आपण द्रौपदी की बाजी लगे दियंतु, जदि जीति जिवे तबे राज्य राजत्व सब आपणकर, आउ जदि हारि जिवे, जोटी पंचु पांडव हारि जाइछंती सेठी पत्नी भी दासी हे जीवो। पांच पतिंकर अर्थांगिनी निज पतिंक ठारू केमिति अलगा रहिबो भ्राताश्री? रखन्तु सम्राट युधिष्ठिर अंतिम पण, ए पट नले से पट। मु द्रौपदी कृपणरे रखुची। द्रौपदी, द्रौपदी मामाश्री। हो भणजा, ताहले आपण भी निजर यशस्वी हाथ बढ़ातु। हाथ को आसीथिबा हीरा हाथरू चली जिबा अनुचित। अवश्य। मामाश्री मारो, मामाश्री मारो, मारो, मारो मामाश्री। पड़िबो भणजा, अवश्य पड़िबो मारो। मामाश्री मारो। मामाश्री मारो, अवश्य पड़िबो भणजा, पड़िबो मारो। प्रतिहरी। आज्ञा युवराज। जाओ प्रतिहरी, मोर सर्वश्रेष्ठ दासी द्रौपदी को मो सम्मुख उपस्थित होगा आदेश दियो। जथा आज्ञा युवराज। कौन प्रतिहरी, कहार संदेश आनिछ? संदेश नु महाराणी, आदेश आनिछि। युवराज दुर्योधन आपण को द्यूत सभारे तुरंत उपस्थित होबार आदेश दैछंती। मते द्यूत सभारे उपस्थित होबार आदेश? से कौन भूली गलेनी जे मो पांडवंक पत्नी आ मते आदेश देबार अधिकार केवल मो पतिंकर ही रही, आउ काहरी नुहे। किंतु कौन? आउ एमितरे भी युवराज मते दूत सभा को डकाइबा अनुचित। आउ आउ जने नारी रा दूत सभा रे की काम? क्षमा करंतु महारानी, ए मुहूर्त रे आपण केवल द्यूत रे हारि जाइतवा गोटे वस्तु। सेथिबाई आपण को भी द्यूत सभा रे विजयी पक्ष को हस्तांतर करा जिवो। प्रतिहरी, मु कौन से निर्जीव वस्तु नुहे जे मोर स्वामी परिवर्तन हेबे। मु हउची जने नारी, धन नुहे।
धर्मराज मते पण रखिले केमती एइथिपाई जे से निजर समस्त धन समस्त संपत्ति सेना अस्त्र एवं निजर 4 जन अनुजोग हारिबा परे से निजक भी पण रखि देथिले। कौन 5 भाई पणरे लागी गले आ से माने मते भी बाजी लगे देले सेठी युद्ध होउथला ना युद्ध तांकर बोधे बुद्धि नष्ट हो जाइछि निजको निज तो हारी गले किंतु किंतु से मानकर मते बाजी रखिबार कोन अधिकार थिला। प्रतिहारी आज्ञा महारानी। जाओ युवराज दुर्योधन को कहबा जे मु जाई परिबिनी। यथा आज्ञा महारानी। आसी पारिबनी गोटाए दासीर एते साहस। धैर्य धर भणजा धैर्य धर। हाँ बिचारी नुआ नुआ दासी हेइछि तो आउ नुआ नुआ घोड़ी भी तो पोषा मानेनी आउ प्रतिहारी तो शिष्टाचार बसत ता सम्मुखर हाथ बांधी छिड़ा हेइथिबो। आप ठीक कहते मामाश्री से मोहखोर घोड़ी को कौन सी प्रतिहारी लगाम लगाई पारिबनी। दुशासन आज्ञा भ्राताश्री जाओ द्रौपदी को शीघ्र ले आओ। जदि सेठी आसियो को मना करे तेरे ता केस को तू लगाम बोली भाविबो और जो आड़ को तू से लगाम को टाणीबो सही दिग को द्रौपदी घोड़ी भली टाणी है बाध्य है चली आसीबो। जाओ जो आज्ञा भ्राताश्री। एबे जाई द्रौपदी को टाणी टाणी आनिबे भ्राताश्री। दुशासन तुमको मो कक्ष को मो बिना आज्ञा रे एमते आसवा उचित हेलानी। आज्ञा नहीं तू तो निजको कौन भावुचो तू केवल गोटाई दासी आउ दासी कक्षर द्वार निज मालिक को निमंते राति दिन सर्वदा खोला रही थाए। मालिक जेतेबेले चाहिबो निज इच्छा रे बिना आज्ञा रे ही आसी पारिबो बुझलु। दुशासन मु तमर भाउज हेबी तमर ज्येष्ठ भ्राताश्री पत्नी तमे तमर सान दियर आ तुम मु माता समान माता समान केबे भी नुह तू केवल आम पाई गोटाए दासी आउ किसी भी नुह। एते असम्मान एते अपमान जे अन्य को मान सम्मान दियंतरी तांको भाग्य रे अपमान ही थाए। तू भी कहार अपमान अन्य सम्मुख रे करिछु आ आज तोर अपमान सारा दरबार रे सर्व सम्मुख रे हबो। चल दुशासन छाड़ मात को छाड़ मात चल छाड़ मात दुशासन छाड़ मात दुशासन ए समय मु एक वस्त्र परिहिता छाड़ मात ताले तू एमिति जीवनी बहुत छई काढु छु भाई मात दुशासन तो निजको नहीं तोर बहुत गर्व। चल कहूची चल कहूची चल कहूची चल 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 कहूची चल चल चल
कौचे चल कौचे चल 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 कौचे टाणी के सबास पंचालीर दुष्ट दुशासन निमिति उपाड़ी वृक्ष को निज सुंढरे पागल हाथी निये जेमिति भरत वंशर मर्यादा कुरु वंश तू बंचिब केमिति भरत वंशर मर्यादा गुरु वंश तू बंचिब केमिति एक बसन रे राजकु पंचाली सभारे अबा ढांकिब केमिति एक बसन रे राजकु पंचाली सभारे अबा ढांकिब केमिति नियंतु आपण को दासी को बा दुशासन बा दीर्घजीवी हो देखु चंती तो भ्राताश्री आपण को पई द्रौपदी रो केमती असम्मान होउचे जदि आपण मो भ्राता न होई थांते तेबे जो हातरे द्रौपदी को पसारे हारी ये गधिया को सामने रे पकई छंती से हाथ को मो भ्राताश्री शांत ही जा ए मुहूर्त निज भितर कली करवा उचित हबनी गाड़ी दौचु तू भूली जाऊचु दे तू होचु मो दास दास मो आज्ञा बिना तू हली भी पारिबुनी गाड़ी दौची चल बस बस कहूचे तोर गोटाए दासीर असम्मान चिंता रही ना किंतु तो स्वामीर मान सम्मान आदौ चिंता नहीं मु कहूची दे सम्मान कौन आउ दासी असम्मान कौन यही कथा तो तुम शिखैच दास दासी मान को द्रौपदी द्रौपदी दुशासन यथाज्ञा भ्राताश्री निज
स्वामीर आज्ञा पालन कर सेठिकी जा सेठिकी देख आस द्रौपदी आस आसी मो कोଳରେ बसी जाओ दुर्योधन तू ए दूतर नुहे मो पत्नी भी अपमान करिछु मु ए सारा सभारे प्रतिज्ञा करुछि जे जो जंग उपरे तू मो पत्नी को बसिबा को आदेश देछु ईश्वरंकरण मु से जंग को मो गदारे निश्चय भांगिबी आउ दुशासन तू भी मो अन्य प्रतिज्ञाटा शुणिने जो हाथ तू द्रौपदी केश को छुईचु से हाथ को मु तो शरीर अलग करदेवी आउ तो रक्त रे मु द्रौपदी केश धोबी आज्ञा भ्राताश्री जाओ द्रौपदी को शीघ्र ले आओ जदि सेठी आसियो को मना करे तेरे ता केश को तू लगाम बोली भाविबो और जो आड़ को तू से लगाम को टाणीबो सही दिग को द्रौपदी खोड़ी भली टाणी हेई बाध्य हेई चली आसीबो जाओ जो आज्ञा भ्राताश्री एबे जाई द्रौपदी को टाणी टाणी आनी भ्राताश्री चल तुझे टाणी की सबास पंचालीरा दुष्ट दुशासन नियमिति उपाड़ी वृक्ष को निज सुंढरे पागल हाथी निये जेमिति भरत वंशर मर्यादा कुरु वंश तू बंचिब केमिति भरत वंशर मर्यादा कुरु वंश तू बंचिब केमिति एक बसन रे लाजकु पंचाणी सभारे अबा ढंकिब केमिति एक बसन रे लाजकु पंचाणी सभारे अबा ढंकिब केमिति माताश्री नियंतु आपण को दासी को बा दुशासन बा दीर्घजीवी हो द्रौपदी द्रौपदी दुशासन यथाज्ञा भ्राताश्री निज स्वामीर आज्ञा पालन कर सेठिकी जा सेठिकी देख आस द्रौपदी आस आसी मो कोଳରେ बसी जाओ दुर्योधन
केवल नुहे मो पत्नी भी अपमान करुछु। मु ए सारा सभा प्रतिज्ञा करुछि जे जो जंग उपरे तू मो पत्नी को बसिबा को आदेश देचो ईश्वरंकरण मु से जंग को मो गदारे निश्चय भांगिबी। आउ दुशासन हाँ तू भी मो अन्य प्रतिज्ञाटा शुणिने। जो हाथ रे तू द्रौपदी केश को छुईचु से हाथ को मु तो शरीर अलग करदेवी आउ तो रक्त रे मु द्रौपदी केश धोइबी। धीरे कह धीरे जड़े दास निज मालिक सम्मुख एभली उच्च स्वर रे कथा कहे ना। हाँ दास तू बसी जा बस। अरे क्यों मान सम्मान को नहीं तू एते क्रोध करुचु? आउ क्यों मुहरे तू ताकू निज पत्नी कहूचु? ये अरे ये तो पांच जन पति को पत्नी। पांच जन को स्थान रे जदि 6 जन ही जाती ताले कौन आकाश खसी पड़िबो? देखो देखो केमिति निज पणत सजाड़ुची कि नाटक करुची। वाह जेमिति जने पतिव्रता नारी। केमिति मिथ्या लज्जार भ्रम सृष्टि करुची निर्लज्जी कौटिकार। द्रौपदी एबे तू दासी है ये चू दासी। ए राज्य तो रानी महारानी कर आभूषण तत्ते शोभा पाऊनी। जो पर्यंत तो मालिक चाहब से पर्यंत वस्त्र तो शरीर रे रहिबो। आउ जेते बेले मालिक आज्ञा हबो सेते बेले ताकू तुरंत काढ़ी फिंगी दबा ही दासीर धर्म। नहीं युवराज आपणकर ये नुआ दासी को तार धर्म शिक्षा देबेनी? अवश्य अवश्य कर। दुशासन द्रौपदी को निवस्त्र कर दे, निवस्त्र कर दे, निवस्त्र। आपण हाथ अपने हाथ रखी सब देखु किसी कही पाना अनर्थ को रोकी पाना कौन संस्कार देते आप निजर पीढ़ी को कि से माने निज गुरुजन को सम्मुख नारी जातिर आत्मा को उल्लंघन करदे पितामह कहतु। काकाश्री
आपण तो सर्वदा न्यायर पक्ष नहीं थांती ना कौन है आपण को न्याय ये कौन न्याय जे कि जड़े स्त्री को सभा मध्य रे आनी विवस्त्र करा जीवो कहतु काका श्री आपण तो कुलगुरु धर्म रक्षा आपण को कर्तव्य आपण को धर्म भी कौन नाचार एवं विवश ता मुहरे भी कौन जीवा नहीं जहाँ अधर्मी मान को रोकी पार आपण को धर्म रे भी कौन हाथ नहीं जहाँ से हाथ को काटी दब जहाँ जड़े नारी मर्यादा को उल्लंघन करने को अग्रसर होची कुलगुरु कहतु आपण तो धनुर्विद्यार गुरु आपण को तुणी नर बाण तो शिकारी आखि को लक्ष्य भेद करती आचार्य ताहले ए मुहूर्त रे केमती आपण को कमण रे कोनोसी बाण नाही जहाँ के मान को आखि फुटई दब कहतु जो माने कि जड़े असहाय नारी सम्मान को आघात करी तार तामसा देखा चाहते कहतु आचार्य कहतु आपण भी नीरव रोचंती आचार्य ए सभारे जड़े आपण अच्छा महाराज ये समस्त ठारू अधिक भाग्यवान हाँ भाग्यवान एथि नुहे जे आपण महाराज पर जे दरबार जी अत्याचार होची ताकू आपण देखि पारु नांती जदि देखि थांते ताले निज आखि फुटे दी थांते महाराज निसंदेह आपण देखि पारु नांती किंतु सुनी तो पारुचंती जदि ए पर्यंत भी आपण किछि सुनी नांती ताले बे सुनतु जेमती काली आपण ए कथा कहबिनी जे आपण किछि देखि नांती किछि सुनी नांती आपणक राज्य रे आपणक दरबार रे आपणक अध्यक्षता रे आपणक पुत्र आपणक सम्मुख रे आपणक राज्य रे आपणक दरबार रे आपणक अध्यक्षता रे आपणक पुत्र आपणक सम्मुख रे आपणक स्वर्गत भाई को पुत्र बधु को विवस्त्र करने को जाउछंती महाराज विवस्त्र करने को जाउछंती विवस्त्र करने को जाउछंती महाराज जहाँ को भारत वर्ष रे घर मर्यादा कह जाए महाराज आउ जड़े नारी जहाँ को माता एवं देवी भावे सम्मानित करा जाए सम्मान नीलाम होची महाराज नीलाम होची निर्लज पुरुषों भराई सभारे जड़े एकाकिनी नारी निज सम्मान रक्षा निमंते जण जण को डाकुची शुणवा लोक कई नहीं महाराज शुणवा लोक कई नहीं त्रेतया जुगरे रावण से समय सीता हरण पाप करथिला जेतेबेले सीता माता लक्ष्मण रेखा डेइबार भूल करथिले किंतु ए रावण निजे लक्ष्मण रेखा लंघन करी जड़े स्त्री को केस धरी
ଅଶୋକ ଭଳି ଟାଣି ଆଣିବାର ଦୁଃସାହସ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଇଏ ମୋର ସାନ ଦିଅର ନିଜ ମାତା ସମାନ ଭାଉଜର अंतिम अपमान करने को जाऊची। ये निज माता को विवस्त्र करने को जाऊची। तुम्हें तो मोर पति ना, तुम्हें किसी कहबनी। तुम मध्य प्रत्येक महाशक्तिमान कहीं सर्वश्रेष्ठ गदाधारी तो आउ कहीं सर्वश्रेष्ठ धनुवीर महारथी मो सम्मान पंचरक्षक जो माने पानी ग्रहण समय मो सम्मान रक्षार शपथ नहीं थिले। आज मो सम्मान हरण करी अधर्मिक सहित के जानी को धर्म पालन करुछंती। निज मुह सिले करी बसी जाइछंती माने। ए पांच जण विवेश हो जाइछंती एथि भाई ए पापी कपटरे अछंती काहे कि नै माने दास हो जाइछंती दास। किंतु बाकी सभासदकर कोण हेची पिता मा आपण कहतु। गुरुदेव आपण कहतु आपण समस्ते जीवित अटंती ना पाषाणर मूर्ति। अरे आपण समस्त हृदय कौन पत्थर हो जाइए। मो पचारुची ए पूरा सभा रे गुरु धर्मगुरु पिता पितामह कौन एमानक मध्यरु कहा शरीर में जीवित आत्मा नहीं जे कि अमानवीय अत्याचार विरुद्ध रे तू शब्द कहि परिबो। धिक्कार ये सभा को धिक्कार ये सभा को धिक्कार ये अन्याय अत्याचार ये सभारे जहाँ भी किसी हेउची आदौ ठीक हेउनी। तू जुबरा दुर्योधन विरुद्ध रे कहबाकू साहस करूचो। मु केवल अधर्म विरुद्ध रे कहूची। ए सभारे ए मुहूर्त रे जहाँ भी किसी हेउची ना से धर्म आउ ना से सभ्यता। चित्कार करंतुनी भ्राताश्री चित्कार करंतुनी। आपण चित्कार करी डरे धमकी मोर सत्य वचन को दबाई देबाकू चाहूचंती। ए पर्यंत मु एथि पे नीरव थिली कारण आपण मोर अग्रज एवं मु आपणकर अनुज। मु अपेक्षा कर रही थी जे ए सभार उपस्थित आमर गुरुजन किछि कहिबे किंतु पिताश्री पितामह गुरु द्रोण कुलगुरु कृपाचार्य एवं काकाश्री नीरवता अन्य सभासदों को भी नीरवता अवलंबन करने को बाध्य करिछि। मोर से सभाजन को प्रार्थना जे जार अंतरात्मा ए पर्यंत निस्तेज होइनी से माने युवराजों को विरोध करंतु आउ अति शीघ्र सब त्याग करंतु।
स्थान में अन्य कई था तेरे तार बारी रे तार एई मुहूर्त रे सिर छेदन करी थांती मु तते हत्या करी ए सभा को भंग करने को चाहूनी से तू एई मुहूर्त रे ए सभा त्याग करी चली जा मु कहूँ चली जा मु एतटा निर्लज नुहे जे निजर माता समान भाउजों को निज सम्मुख रे विवस्त्र हेउथवार देखिबी सेथि पई मु एबे ए सभा को त्याग करूची किंतु जीवा पूर्व आपण को एवं पिताश्री को एति कहबा को चाहूची जे अनर्थर परिणाम भल हेबनी आज ए महासभा रे कौरव कुलर महाविनाशर बीज वपन हेउची पिताश्री कौरव कुलर महाविनाशर बीज वपन हेउची दुशासन कौन चिंता करुचो आज्ञार पालन कर जीवन
हे द्वारिकाधीश, हे भगवान श्रीकृष्ण, तमें पांडवों सम्मान रक्षा कल, जड़े विधवार पुत्र वधुर सम्मान रक्षा कल। सत जन्म पर्यंत पांडव जदि तम सम्मुख मुंड नुआंती तेबे भी तमर उपकार भार निज मुंडर उतारी पारिबेनी। द्रौपदींकर प्रार्थना रे श्रीकृष्ण द्यूत सभारे निजर लीला करने को जाई जड़े नारीर लज्जा निवारण कले। यह देखि समस्ते स्तब्ध हो गले। दुर्योधन, दुस्साहसन, कर्ण एवं शकुनी भली पापी किछि समय पाई निजको निरस्त्र कर देइथिले। श्रीकृष्णकर से लीला उपरे समस्तंकर आत्मा जागृत हो उठिथिला। जनक परे जणे समस्ते कहबाकू लागिले। समस्या बड़ गंभीर हो पड़ा। धृतराष्ट्रंकर दृष्टिहीन नेत्र को के जाने क्यों समस्या दृष्टिगोचर होता से अग्रसर हो परिस्थिति को संभाली नेले। आज द्यूत सभारे जहाँ भी किछि हेला से सब हबार नथिला। पांडव निजर जहाँ भी किछि हारिचंती राज्य धन दौलत से सब मु सेमानकु फेरई दउछि। महाराज धृतराष्ट्र पांडव एवं पांचाली को दासत्वर मुक्त करी सेमानंकु राज्यादि भी फेराई देले। दुर्योधन हाथरू सबु चली जाउथिबार देखि कहिला, महाराज एमिति द्यूत पिला खेल हे रही जिवो। बसा खेल रे जण जितिले आउ जणे हारि थाए आउ हारिबा पक्ष को किछि ना किछि हारिबा को आइताए। तापरे सभारे पुणी थरे हट्टगोल सृष्टि हैला। प्रत्येक व्यक्ति निज निजर कथा कहूथिले। केही पांडवों सपक्ष कहले तो आउ केही कौरवों सपक्ष चित्कार करुथिले। शेषरे गोटाए निष्पत्ति ग्रहण करागला जे पांडव 12 वर्ष वनवास एवं गोटाए वर्ष अज्ञातवास भोग करिवे। आउ ए शर्त भी थिला जे जदि अज्ञातवास रे धरा पड़ी जाती तेबे सेमानकु पुणी थरे 12 वर्ष वनवास एवं पुणी गोटाए वर्ष अज्ञातवास भोग करबाकू हबो। एमिति कि पांडव निजर ज्येष्ठ पिताश्रींकर आज्ञानुसार निजर राजस्वी वस्त्र त्याग करी वनवास जीवा पाई प्रस्तुत हो गले। आपण द्रौपदी को अंतिम अपमान तो रक्षा करदेले, परंतु द्वितीय सभा को जीवा निमंते आपण एते विलंब रे काहे पदक्षेप नेले प्रभु? देवी, मनुष्य जे पर्यंत सांसारिक प्राणी मान को साहाय्य मागुथिबो भगवान ताको केमिते साहाय्य करि परिबे? द्रौपदी सबुठारो निराश होला परे जेतेबेले मते सहायता निमंते प्रार्थना कले मु तुरंत तंक सहायता निमंते पहुंची गली। प्रभु, परंतु एबे पांडवों का सहायता करिबा पई केही नाहंती प्रभु। एबे भाग्य से मन को साहाय्य करिबो देवी। वस्त्र आभूषण समस्त देहुतांक काढ़ी देई। वस्त्र आभूषण समस्त देहुतांक काढ़ी देई। भिक्षुक बेसे चलंती पांडव 5 भाई। राजा होई 10, राजा होई 10। अनुमति जाई मातांकु मागुथांती हाथ जोड़ी। अनुमति जाई मातांकु मागुथांती हाथ जोड़ी। छाती रे लदी जे पत्थर जीवे मातृभूमि छाड़ी। राजा दास होई हो, राजा दास होई। स्वामींकर जी
पथटी से तो पत्नीर पथ स्वामींकर जीए पथटी से तो पत्नीर पथ सीतांग परी द्रौपदी मानि नेले से सत राजा हेले दास ओ राजा हेले दास के कहे नियति जोग किए कहे कर्म दोषे के कहे नियति जोग जानिथिला किए जीवने आसीबो ए दुख भोग राजा होई दास हो राजा होई दास महाराज कर जय हो। कथा कौन दासी? रानी कुंती आपण को कक्ष को आसवा को आज्ञा चाहउचंती। आज्ञा? तार आज्ञा कौन आवश्यक दासी? जाओ ताको भीतर को नहीं आसो। जथा आज्ञा। गांधारी लगुचे कुंती आम ऊपर अत्यंत क्रोधित। हेबा तो स्वाभाविक। सुखी भव। प्रणाम महारानी। कुंती आज तोर ये कौन है? आज प्रथम थर मो कक्ष को आसवा निमंते तू आज्ञा मागिलु। निज नानी कक्ष को आसवा निमंते तोर आज्ञार आवश्यकता कौन रही? मु आपण को नानी तो मानुची, किंतु आपण तो महारानी, एक कथा मु केमिति भूली परिबी? कुंती तुम्हें मो ऊपर क्रोधित ना? से द्यूत सभारे द्रौपदी सहित जो अन्याय होइथिला भगवान का नियम महाराज, से घटना वर्णना करी मो मन को पुणी थरे से अश्लील चित्र देखेबार चेष्टा करंतुनी, जे जहार स्मरण मात्र के मो आत्मा प्रकंपित हो उठुची। कुंती मु जने माता आ स्त्री हेतु तो हृदय जंत्रणा को बुझी पारुची, किंतु जहाँ भी किछि हेला ताको कौन तो अतीतर घटना भाभी भूली पारिबुनी। जदि अतीतर से घटना को अतीतर घोर अंधकार निज गर्भरे लुचई दी था, तेबे हुए तो मुझे भूली जाई पारि थांती, किंतु ए घटनार परिणाम तो भविष्य पर्यंत व्यापी जाइछि। 13 वर्ष पर्यंत मोर 5 पुत्र पुत्रवधू ए घटनार बोझ निज हृदय लदी वनवास और अज्ञातवास भोग करिवे।
ଆଉ 13 वर्ष पर्यंत जदि मु जीवित रहे तेबे निया ऊपर सोई रही याठू तो भल ही था जे मु महाराज पंडू का जोई रे सोई जाई थाती। कुंती मु दुखिता कुंती जे तो परिवार सहित एते बड़ दुर्घटना घटी गला एते बड़ दुर्घटना घटी गला। क्षमा करंतु महारानी मो निजर पुत्र आ पुत्र बधू का दुख नहीं आपण को लज्जित करने को आसी नथिली। मु केवल यही कथा कहबा को आसी थिली जे मु आपण करे राजमहल छाड़ी चली जाउची। राजमहल छाड़ी चली जाउछ आउ जीव कुआडे? पांडवंक वनवास परे तुमर देखाशुणार दायित्व मो मुंडरे। तुमर ये राजमहल रे कौनसी प्रकार कष्ट हबनी। तुम्हें भी एठारे जने महारानी भली राजत्व करिव। महारानी भली राजत्व करिबी? महाराज जो मातार पुत्र वनवास कष्ट भोगुथिबे से माँ राजमहल रे कौन स्वर्ग रे भी शांति पाइबनी। जदि मो पुत्र माने निजर पुत्र धर्म पालन करने को जाई निजर पिता समान महाराज कर समस्त आज्ञा पालन कले मुझे आज्ञाकारी पुत्र माता हेतिबा हेतु निजर ममता धर्मर पालन न करिबी ये केमिति संभव? कुंती पांडवंक वनवास को तू ए राजमहल चली जीवार बाहाना करुचु केवल एइथिपाई जे आम सम्मानर भ्रम न भांगू आमर सम्मान रक्षा हो नचेत सत कथा तो हेउची जे मु भी तो स्थान रे थिले से राजमहल रे मुहूर्त भी हेले रही न थांती जेउठी मो पुत्र बधू उपरे एभली अत्याचार हेइथिबो। कुंती जने स्त्री हेतिबा हेतु तो हृदयर जंत्रणा मु भल भाव बुझी पारुची। कुंती तुमर राजमहल छाड़ी चली जीवार निर्णय मते खूब विवश कर देइछि किंतु तुम्हें जीव केउठी की? महाराज नारीर ससुराल व्यतीत और आश्रय कोठी ए घरे न रहिले सान दियरंक पाखे रहिबी। अर्थात तुम्हें महामंत्री विदुर घर को जीव? हाँ महाराज आपण को सान भाई घर को। आज्ञा दियंतु महाराज। आज्ञा दियंतु महारानी। कुंतिल मोर आज तते ईर्षा होची जदि मु तो स्थान रे थांती एमिति धर्मर पालन करी तोर आज्ञाकारी पुत्रंक माँ हेबार गौरव मते मिली थांता। महारानी से माने एबे भी आपनक पुत्र से माने सर्वदा आपण दोही को निज माता पिता को मान्यता देछंती और सेथि पई सेमिति आदर और सम्मान मध्य करंती। कृष्ण